السلام علیکم پیارے دوستو، بہت پرانی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا۔ اپنی رعایا کا خیال ایسے رکھتا تھا جیسے لوگ اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں۔ اسے ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں اس کی سلطنت میں کوئی دکھی یا ضرورت مند تو نہیں ہے۔ اس نے اپنے افسروں کو تاکید کر رکھی تھی کہ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور شکایت کا موقع نہ دیں، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے روز رات کو بھیس بدل کر شہر میں گشت کرتا تاکہ پتہ لگا سکے کہ اس کی سلطنت میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ ایک رات وہ شہر میں گشت لگا رہا تھا تو ایک چھوٹے سے مکان کی کھڑکی سے آتی ہوئی کچھ لڑکیوں کی آوازیں سن کر رک گیا۔ کمرے میں 3 بہنیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا، اگر میری شادی بادشاہ کے باورچی سے ہو جائے تو مزہ آ جائے، کھانا بھی نہ پکانا پڑے اور دنیا بھر کے مزے کے کھانے کو ملے۔ دوسری لڑکی نے کہا، اگر میری شادی بادشاہ کے شاہی درزی سے ہو جائے تو مجھے بڑھیا کپڑے پہننے کو ملیں۔ تیسری لڑکی کچھ نہیں بولی تو اس کی بہنیں اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ تم بھی بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں تو چاہتی ہوں کہ میری شادی بادشاہ سلامت سے ہی ہو جائے تو میرے تو ایش ہو جائیں گے۔ اس کی بہنوں نے خوب اس کا مذاق اڑایا۔ ذرا ان کی ہمت تو دیکھو، بادشاہ سے شادی کرنے چلی ہیں۔ بادشاہ نے سب کچھ سنا اور واپس چلے گئے۔ اگلے دن دربار میں انہوں نے نوکر بھیج کر تینوں بہنوں کو بلوایا۔ ڈرتی تینوں آئیں۔ بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ رات کو تم لوگ کیا باتیں کر رہی تھی؟ تینوں ڈر سے کانپنے لگیں۔ پہلے تو نہیں کرتی رہیں، آخر میں دونوں بڑی بہنوں نے اپنی خواہش بتا دی۔ بادشاہ نے چھوٹی بہن سے پوچھا، سچ بتاؤ، تم نے کیا کہا تھا؟ پہلے تو وہ یہی کہتی رہی کہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن پھر اسے سچائی بتانی ہی پڑی۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے باورچی اور درزی کو بلایا اور دونوں بڑی بہنوں کا نکاح ان سے کروا دیا اور چھوٹی بہن سے خود نکاح کر لیا۔ بڑی بہنیں تو جل بھن کر کوئلہ ہو گئی۔ اپنی خواہش پوری ہونے کی خوشی نہیں ہوئی، جلن اس بات کی تھی کہ چھوٹی بہن تو ملکہ بن کر ان کی مالکن بن گئی اور وہ اس کے نوکروں کی بیویاں بن کر رہ گئیں۔ حالانکہ چھوٹی بہن نے کبھی ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا، ہمیشہ چھوٹی بہن کی طرح ہی برتاؤ کرتی رہی، کیونکہ وہ فطرتاً سادہ اور نیک لڑکی تھی۔ لیکن بہنیں تو ہر وقت انگاروں پر لوٹتی رہتی اور اسے نیچا دکھانے کے بہانے تلاش کرتی رہتی۔ بادشاہ کی 2 بیویاں اور بھی تھیں، لیکن کسی کے اولاد نہیں تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چھوٹی ملکہ امید سے ہو گئی۔ بادشاہ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ، ملکہ کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی۔ بادشاہ ہر وقت اس کی خوشی کا خیال رکھتے اور بہنوں کے سینوں پر سانپ لوٹتے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا، میری بہنوں کو بلا دیجئے، جس طرح وہ میری دیکھ بھال کریں گی اس طرح کوئی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو تو ملکہ کی ہر خوشی منظور تھی۔ انہوں نے فوراً دونوں بہنوں کو بلوایا اور کہا کہ ولادت ہونے تک ملکہ کے پاس رہو اور ان کا پورا خیال رکھو۔ اگرچہ بادشاہ ملکہ کی بہنوں کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے کئی بار ملکہ کو ہوشیار بھی کیا تھا کہ آپ کی بہنیں حسد کی آگ میں جل رہی ہیں، ان سے خبردار رہیں، لیکن ملکہ نے کہا، وہ میری ماں جائی ہیں، ہو سکتا ہے انہیں میرا ملکہ بن جانا پسند نہ آیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچیں، آخر وہ میرا خون ہے۔ غرض ملکہ کو اپنے اس یقین کی قیمت چکانی پڑی۔ ملکہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بہنوں نے شاہی دایا کو اشرفیوں کا لالچ دے کر مجبور کیا کہ وہ بچے کو مار دے اور اس کی جگہ 2 کتے کے نوزائیدہ بچے رکھ دے۔ دایا لالچ میں آ گئی، اس نے ایسا ہی کیا، لیکن اس میں کچھ انسانیت باقی تھی۔ اس نے بچے کو مارنے کے بجائے اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر ندی میں بہا دیا تاکہ کم سے کم جان سے مارنے کا گناہ اس کے سر نہ جائے۔ ادھر بادشاہ بے تابی سے ولادت کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ملکہ نے 2 کتے کے پلوں کو جنم دیا ہے تو ان کے دکھ اور حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے ملکہ کے پاس پالنے میں 2 کتے کے بچوں کو پڑے دیکھا تو یقین کرنا پڑا اور غصہ بھی آیا کہ یہ کیسی عورت ہے جو جانوروں کے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ انہوں نے کتے کے پلوں کو محل سے باہر پھینکوا دیا۔ ملکہ کا الگ غم سے برا حال تھا، اسے خود اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ بہنیں تو یہ کارنامہ انجام دے کر اپنے گھر سے دھاری اور بادشاہ
काफ़ी दिन तक मलका से नाराज़ रहे। फिर बात पुरानी हो गई। मलका दूसरी दफ़ा उम्मीद से हुई तो बादशाह ने तमाम वेद हकीमों को दिखाकर पूरी एहतियात करवाई। दवा भी हुई, दुआ भी की। जैसे जैसे विलादत के दिन करीब आ रहे थे, मलका खौफ से पीली पड़ती जा रही थी कि अगर अब के कुछ गड़बड़ हुई तो बादशाह उसे निकाल बाहर करेंगे। विलादत का वक्त करीब आया तो फिर दोनों को देखभाल के लिए बुलवा लिया गया। बहनें वज़ाहिर बड़ी हमदर्दी दिखाती और अंदर ही अंदर मलका को डराती कि लगता है तुम पर किसी आसेब का साया है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ गड़बड़ हो जाए। गरज विलादत का वक्त आया तो वही दाया बुलाई गई। अब के फिर मलका के यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ। बहनों ने दाई को दुगना इनाम देकर मजबूर किया कि उसे भी ठिकाने लगा दे और अब के बिल्ली के 3 बच्चे रख दिए गए। दाया का ज़मीर अभी जिंदा था। वो दूसरी मर्तबा ये काम करने पर राज़ी नहीं थी, लेकिन उन दोनों ने धमकाया कि हम तुम्हारी पोल खोल देंगे और सारा इल्ज़ाम तुम्हारे सर रख देंगे। हम मलका की बहनें हैं, हम पर किसी को शक नहीं होगा। दाया आपके लालच से ज़्यादा खौफ की वजह से फिर ये जुल्म करने पर आमादा हो गई, लेकिन इस बार भी उसने बच्चे को मारने के बजाय उसी तरह टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। बादशाह खुशखबरी सुनने के लिए महल में टहल रहे थे जब उन्हें इत्तला मिली कि अब की बार मलका ने बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह सख्त बदमज़ा हुए। गुस्सा भी आया कि ये औरत है कि शैतान जो इंसान के बच्चों के बजाय कुत्ते बिल्ली के बच्चों को पैदा करती है। मलका का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बहनें झूठे आंसू बहाकर चलती बनी। बिल्ली के बच्चों को भी महल से बाहर फेंकवा दिया गया। सारे शहर में ये बात मशहूर हो गई कि मलका के यहाँ कुत्ते बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं। अब के बादशाह ने बहुत दिन तक मलका की सूरत नहीं देखी। बहनें बहुत खुश थीं, बार बार आकर झूठी हमदर्दी जताती रहती थीं। खैर कई माह गुजर गए तो बादशाह ने फिर मलका के महल में आना जाना शुरू कर दिया। उन्हें भी अपनी इस खूबसूरत और कमसिन मलका से मोहब्बत हो गई थी। जो कुछ हुआ उसे वो किस्मत का लिखा समझकर भूलने लगे थे। मलका फिर माँ बनने वाली थी। इस बार दवाओं से ज़्यादा दुआओं, तावीज़ और गंडों का सहारा लिया गया। हज़ारों मिन्नतें मुरादें मानी गई। मलका की हालत डर के मारे दिगरगों थी। वो जानती थी कि अब के अगर कुछ अनहोनी हुई तो उसका महल से निकाला जाना यकीनी है। फिर पैदाइश का वक्त आया और फिर से मलका की बहनों को बुलाया गया। बहनों को तो यही नागवार था कि बहन का उजड़ा घर फिर से बस कैसे गया। शाही दाया ने साफ इनकार कर दिया था कि अब के वो कुछ नहीं करेगी। दोनों ने धमकी दी कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो फांसी पर लटका दी जाओगी। बादशाह पर अगर हमने शुबा भी जाहिर कर दिया कि उनके बच्चों को मारने में तुम्हारा हाथ था तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। दाया ने एक बार फिर अपने ज़मीर का गला घोंट दिया। अब के मलका ने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया। इस बार भी बच्ची को मारने का हुक्म मिला और दाया ने बच्ची को भी नदी में बहा दिया। इस मर्तबा मलका के पास एक सफ़ेद रंग का चिकना पत्थर रख दिया और बादशाह को बताया कि मलका ने एक पत्थर को जन्म दिया है। बादशाह के सब्र ज़िब्त की कोई हद नहीं रही। उन्होंने हुक्म दिया कि ये औरत नहीं, कोई बदरू है। इसे महल की छत पर कौवे हाँकने के लिए बिठा दो। अब ये बाकी ज़िंदगी कौवे हाँकेगी। बादशाह के हुक्म की तामील की गई। रोती बिलखती मलका को टाट के कपड़े पहनाकर महल की छत पर बिठा दिया गया। बहनें बज़ाहिर झूठी हमदर्दी दिखाती मगर मच के आंसू बहाती और दिल ही दिल में खुशियां मनाती, अपने अपने घरों को सिधारी। अब के मलका को पहली बार अपनी बहनों पर शक हुआ, क्योंकि इस बार उसे इतना होश था कि बच्चे के रोने की आवाज़ उसने भी सुनी थी। फिर वो पत्थर में कैसे बदल गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसकी किस्मत में यही लिखा था कि महल की छत पर बैठकर कौवे उड़ाए और लोगों की मलामत का निशाना बने। अब इधर का हाल सुनो। नदी के दूसरे किनारे पर एक बढ़ई का घर था। बढ़ई अपनी बीवी के साथ एक झोंपड़े में रहता था। उसके कोई औलाद नहीं थी। उसकी बीवी औलाद के लिए तरसा करती थी। एक दिन बढ़ई जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था। उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने इधर उधर देखा तो क्या देखता है कि नदी में एक टोकरी बहती चली आ रही है, जिसमें एक नौजायदा बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ लेटा है। बढ़ई ने पानी में उतरकर टोकरी में से बच्चे को निकाल लिया और अपने घर ले आया। उसने अपनी बीवी से कहा, देख, तुम औलाद के लिए रोया करती थी ना, अल्लाह ने हमें एक बच्चा दे दिया। उसकी रहमत निराली है, वो अपने बंदों को मायूस नहीं करता।
बीवी ने लपक कर बच्चे को संभाल लिया, अपने सीने से लगाया। घर में एक बकरी पली हुई थी, फौरन उसका दूध पिलाया तो बच्चा चुप हो गया। बड़ई ने बीवी को बताया कि उसे ये बच्चा नदी में बहता हुआ मिला है। जिस कपड़े में लिपटा हुआ था वो बहुत कीमती था। बड़ई समझ गया कि किसी अमीर आदमी का बच्चा है। ना जाने किस मजबूरी के तहत उस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आप से जुदा किया होगा। बड़ई ने उस कपड़े को संभाल कर रख लिया और दोनों मियाँ बीवी उस बच्चे की परवरिश करने लगे। बच्चा बहुत ही खूबसूरत और खुश मिजाज था, उन्हें ज़रा भी तंग नहीं करता था। वो दोनों तो अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते थे। बच्चा बढ़ई के यहाँ पलता रहा। अभी वो पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ था कि एक दिन बढ़ई को वैसे ही दूसरी टोकरी में बहता हुआ एक और बच्चा मिला। ये भी लड़का था और ये भी एक कीमती दुपट्टे में लिपटा हुआ था। बढ़ई उसे भी घर ले आया, दुपट्टा संभाल कर रख लिया और बच्चा बीबी के सुपुर्द कर दिया। ले, तू एक बच्चे के लिए मरी जाती थी, अल्लाह ने तुझे एक और बच्चा दे दिया। बढ़ई और उसकी बीवी बहुत खुश थे। ये बच्चा बड़े बच्चे से मुशाहिबत रखता था, इसलिए उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों बच्चे एक ही माँ बाप की औलाद हैं। दूसरा बच्चा भी बकरी के दूध पर पलने लगा। बड़े बच्चे को तो एक साथी मिल गया, वो भी बहुत खुश था। बड़ा लड़का 4 साल का, दूसरा 2 साल का था जब बढ़ई को एक और बच्चा टोकरी में बहता हुआ मिला। ये एक लड़की थी। बढ़ई ने उस बच्ची को भी अपनी बीवी को सौंप दिया। बढ़ई और उसकी बीवी बहुत खुश थे, उनकी महरूमी दूर हो चुकी थी। तीनों बच्चे बेहद खूबसूरत और प्यारे थे। किसी शरीफ खानदान का खून मालूम होते थे और शक्ल सूरत से सगे बहन भाई लगते थे। बढ़ई और उसकी बीवी ने उन्हें अपनी सगी औलाद की तरह पाला और बच्चे भी उन्हें अपने सगे वालिदैन ही समझते थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बढ़ई की बीवी बीमार पड़ी और अल्लाह को प्यारी हो गई। अब बच्चे अकेले रह गए। बढ़ई दिन में काम पर जाता और बच्चे घर में रहते। बच्चे बड़े होने लगे। दोनों भाई अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। तीनों बहन भाई साथ खेलते, साथ खाते, साथ घूमने जाते। बढ़ई ने बच्चों को लकड़ी के खूबसूरत खिलौने बनाकर दिए थे। बच्चे उन घोड़ों को नदी पर ले जाते और गाना गाते, काठ के घोड़ों पानी पियो, नहीं पीते तब भी पियो। एक दिन बादशाह अपने महल के झरोके में खड़े थे। उन्होंने देखा कि 3 बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे लकड़ी के घोड़ों को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बादशाह यूं भी औलाद को तरसे हुए थे। उन बच्चों पर उन्हें बेइख्तियार प्यार आ गया। झरोके से उतरकर नीचे आए और बच्चों से हंसकर बोले, बेटा, कहीं काठ के घोड़े भी पानी पीते हैं? बड़े लड़के ने कहा, हमारे पास तो यही घोड़े हैं, हम तो इन्हीं को पानी पिलाएंगे। बादशाह ने पूछा, तुम किसके बच्चे हो? उन्होंने कहा, हमारे अब्बा बढ़ई हैं, वो सामने हमारा घर है। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? लड़के ने बताया, हमारे अब्बा काम पर चले जाते हैं और हमारी अम्मी मर चुकी हैं। हम तीनों बहन भाई घर पर रहते हैं। बादशाह ने कहा, तुम तीनों महल में आ जाया करो, हम भी तुम्हारे साथ खेला करेंगे। बच्चों ने कहा, हम अपने अब्बा से पूछकर बताएंगे। बादशाह बच्चों की इस शाइस्तगी से बहुत मुतासिर हुए। अगले दिन जब बच्चों ने बढ़ई को बादशाह से अपनी गुफ्तगू दोहराकर महल में जाकर खेलने की बात की तो बढ़ई ने बाखुशी इजाज़त दे दी। अब बच्चे शाम को महल में चले जाते और बादशाह दरबार से आकर उनके साथ खेलते और अपना गम भूल जाते। बादशाह को तीनों बच्चों से बहुत ही मोहब्बत हो गई थी। उड़ती उड़ती ये खबर मलका की बहनों के कानों में भी पहुंची। उन्हें पहले ही शुबा था कि दाया ने बच्चों को जान से नहीं मारा है और उनसे गद्दारी की है। एक दिन उन्होंने महल में जाकर बच्चों को देखा तो अपनी बहन की मुशाहिबत से फौरन पहचान लिया। उन्होंने दाया को बुलाकर धमकाया तो दाया ने साफ साफ बता दिया कि वो अपने हाथों बच्चों के खून से नहीं रंगना चाहती थी, इसलिए उसने बच्चों को नदी में बहा दिया था। अब तो दोनों बहनों के दिलों में फिर हसद की आग भड़क उठी और डर भी लगा कि बच्चे सलामत हैं तो कभी भी भेद खुल सकता है। उन्होंने बच्चों को फिर खत्म करने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम हो चुका था कि दोनों लड़के दिन में बढ़ई के साथ काम सीखने चले जाते हैं और लड़की अकेली रहती है। उन्होंने एक कुटनी को बुलाकर इनाम का लालच दिया और उससे कहा कि ऐसा कुछ करो कि किसी को पता भी ना चले और ये बच्चे ना रहें। कुटनी एक जमाना सास थी। दिन के वक्त बढ़ई के घर जा पहुंची। बच्ची अपनी मिट्टी के खिलौनों से खेल रही थी। कुटनी बोली, बेटी, तुम्हारे बाप भाई कहाँ हैं?
बच्ची ने जवाब दिया, वो तो काम पर गए हैं। कुटनी बोली, तुम तो बड़ी अच्छी बच्ची हो, बिल्कुल शहजादी लगती हो और इन मिट्टी के खिलौनों से खेलती हो। शहजादियों के पास तो बढ़िया खिलौने होते हैं, इन खिलौनों से खेलती तुम अच्छी थोड़ी ना लगती हो। गरज कुटनी तो बच्ची को बहकाकर चलती बनी और बच्ची रूठ कर पड़ गई, ना खाया ना पिया। शाम को भाई आए तो बहन की जिद से परेशान हो गए। उनके पास इतना पैसा कहाँ था कि अच्छे अच्छे खिलौने खरीदते, लेकिन वो अपनी बहन की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकते थे। दोनों अभी छोटे थे, लेकिन लकड़ी का काम अच्छा खासा सीख चुके थे। उन्होंने बहन से वादा किया कि वो उसे महंगे खिलौने लाकर देंगे। अब उन्होंने शाम को बादशाह के यहाँ जाना भी छोड़ दिया। घर पर बैठकर लकड़ी के खूबसूरत खिलौने बनाते और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे इकट्ठा करते। आखिर इस तरह पैसे जमा करके उन्होंने बहन के लिए महंगे खिलौने खरीदे। बहन बहुत खुश हो गई। कुछ दिन बाद कुटनी ने फिर चक्कर लगाया। बच्ची ने खुश होकर अपने नए खिलौने दिखाए। कुटनी बोली, हाँ, अब इन खिलौनों से खेलती तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो बहुत घटिया है। शहजादियां कहीं इतने घटिया कपड़े पहनती होंगी। तुम रेशम और कम ख्वाब के कपड़े पहनकर इन खिलौनों से खेलोगी तब अच्छी लगोगी। बच्ची फिर उसके बहकावे में आ गई और मुंह लपेटकर पड़ गई। शाम को भाई आए तो उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ? बच्ची बोली, भैया मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मैं शहजादियों जैसे कपड़े पहनना चाहती हूँ। भाइयों ने कहा, बहन ये कौन आकर तुझे बहका जाता है? हम गरीब हैं, हमारे पास शहजादियों जैसे कपड़े कहाँ से आएंगे? लेकिन बच्ची तो जिद पकड़कर बैठ गई, खाना पीना छोड़ दिया। मोहब्बत के मारे भाइयों ने फिर मेहनत मजदूरी करनी शुरू की। काफ़ी दिन की मेहनत के बाद उनके पास इतने पैसे जमा हो पाए कि वो बहन के लिए कीमती लिबास खरीद सके। कीमती लिबास पाकर बच्ची बहुत खुश हुई। अब वो उस बूढ़ी अम्मा का इंतज़ार करने लगी जो उसे बहकाया करती थी, ताकि अपने शहजादियों जैसे कपड़े दिखा सके। इतने दिन बच्चों ने बादशाह के महल में जाना भी छोड़ दिया था और नदी पर अपने काट के घोड़े के साथ भी नज़र नहीं आए थे। बादशाह बहुत ही बेचैन रहने लगे। उन्हें बच्चों से मोहब्बत हो गई थी। रोज़ उनके साथ वक्त गुजारकर वो अपना गम भूल जाया करते थे, लेकिन उन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ रहते हैं और बादशाह होकर बढ़ई के बच्चों के लिए बेचैनी जाहिर करना बादशाह को ज़ेब नहीं देता था। वो चुप होकर बैठे रहे, लेकिन बच्चों की याद को दिल से नहीं निकाल पाए। इधर महीना 2 महीना बाद कुटनी ने फिर चक्कर लगाया। लड़की ने खुशी खुशी अपने कीमती कपड़े दिखाए। कुटनी बोली, हाँ, अब तुम लगती हो बिल्कुल शहजादी जैसी, लेकिन शहजादियाँ ऐसे झोंपड़ी के कच्चे आंगन में थोड़ी ही खेलती हैं। उनके पास तो खूबसूरत बाग होता है, जहाँ सोने के पानी का झरना बहता है, गाता हुआ दरख्त लगा होता है और उस पर बोलती चिड़िया बैठी बातें कर रही होती है। जब तुम ऐसे बाग में बैठोगी तब अच्छी लगोगी। कुटनी बच्ची को खूब सिखा पढ़ाकर चली गई और बच्ची फिर मुंह लपेटकर पड़ गई। शाम को जब भाई आए और बहन को इस हालत में देखा तो फौरन समझ गए फिर कोई नई फरमाइश होगी। उन्हें यकीन हो गया कि उनके पीछे कोई आकर उनकी भोली भाली बहन को बहका कर जाता है। उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ? बच्ची बोली, मुझे ऐसे बाग में खेलना है जहाँ सोने के पानी का झरना बहता हो, गाता दरख्त और बोलती चिड़िया हो। भाइयों ने समझाया, बहन कौन तुझे आकर बहकाता है? ये चीज़ें दुनिया में नहीं होती, ये सब कहानियों की बातें हैं। तुम समझदार हो रही हो, अब ये जिद्दें छोड़ दो। लेकिन बच्ची पर तो ऐसी जिद सवार हुई कि 3 दिन तक ना खाया न पिया और रोती रही। आखिर बड़े भाई ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ उन चीज़ों की तलाश में, अगर जिंदा रहा तो ये लेकर ही लौटूंगा, वरना मर खप जाऊंगा। छोटे भाई और बड़ई ने बहुत समझाया कि बच्ची तो ना समझ है, कुछ दिन में भूल जाएगी, तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। लेकिन वो नहीं माना और निकल खड़ा हुआ। जाते जाते भाई से कह गया कि मैं शुमाल की सिमत जा रहा हूँ। वो भी बादशाह का बेटा था और अपने कौल का पक्का था। पैदल चलता गया, पाँव में छाले पड़ गए, सर के बाल बढ़ गए, नाजुक सा बदन सूख कर कांटा हो गया। 6 महीने की मुसाफत तय करके वो एक जंगल में पहुंचा। वहाँ किसी फकीर की झोंपड़ी बनी हुई थी। वहाँ एक नूरानी सूरत फकीर इबादत में मसरूफ थे। शाम हुई तो उन्होंने आंखें खोली और मगरिब की नमाज के लिए उठे। लड़के ने उन्हें वुज़ू करवाया और ख़ुद भी उनके पीछे नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर उन्होंने पूछा, बेटे
कौन हो तुम और इस कम सिनी में ये क्या हाल बना रखा है? लड़के ने कहा, बाबा अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसकी फरमाइश पूरी करने निकला हूँ। मुझे उस जगह का पता चाहिए जहाँ सोने का झरना, गाता दरख्त और बोलती चिड़िया हो। फकीर ने कहा, बेटा वो तो जादू नगरी है, वहाँ जाकर कोई आज तक वापस नहीं आया। लड़के ने दरख्वास्त की, अब चाहे कुछ भी हो बाबा, मुझे वहाँ जाना है। जिंदगी है तो लौट आऊँगा, वरना बहन को मुंह नहीं दिखाऊंगा। जब लड़का किसी तरह नहीं माना तो फकीर ने उसे जादू नगरी का पता बताते हुए कहा कि जब तुम उस नगरी में कदम रखोगे तो चारों तरफ से आवाजें आएंगी, भागो पकड़ो चोर चोर, लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना, अगर मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे। फकीर का शुक्रिया अदा करके लड़का उनके बताए हुए रास्ते पर निकल खड़ा हुआ। 6 माह मजीद चलने के बाद वो जादू नगरी में पहुंचा। वहां क्या देखता है कि यहाँ से वहां तक पत्थर के आदमी बिखरे पड़े हैं। जरा कदम आगे बढ़ाया तो पीछे से आवाजें आने लगी, चोर चोर, पकड़ो बांधो, जाने न पाए। शुरू में तो उसने ध्यान नहीं दिया और हिम्मत करके बढ़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा आवाजें इतनी तेज होती गई कि उसने बेइख्तियार पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे मुड़कर देखा और पत्थर का बन गया। वहां घर पर छोटा भाई बहन और बढ़ई सब बहुत परेशान थे। साल भर गुजर चुका था, लड़की भी अब समझदार हो गई थी। उसे एहसास था कि उसी की जिद की वजह से भाई दर बदर हुआ है। साल गुजर जाने के बाद छोटे भाई ने कहा, अब मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, मैं अपने भाई को ढूंढ कर लाऊंगा। बड़ई ने और बहन ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, भाई ने कहा था मैं शुमाल की तरफ जा रहा हूँ, मैं भी उसी तरफ जाऊंगा। और बहन को रोता छोड़कर वो अनजाने सफर पर निकल गया। 6 महीने जंगलों पहाड़ों की खाक छानने के बाद वो भी उन्हीं फकीर साहब के कुटिया पर पहुंचा और उनसे जादू नगरी का रास्ता पूछा। फकीर साहब ने कहा, बेटा वहां से आज तक कोई वापस नहीं आ सका है। 6 महीने पहले तुम्हारा जैसा ही एक नौजवान मेरे पास आया था और रास्ता पूछा था। मैंने उसे भी बहुत रोका था, लेकिन उसे अपनी बहन की जिद पूरी करनी थी, इसलिए वो नहीं माना और पत्थर का बन गया। लड़के ने कहा, बाबा वो मेरा भाई था, अब मैं बहन की जिद पूरी करने नहीं बल्कि अपने भाई को वापस लाने आया हूँ। जब वो नहीं माना तो फकीर साहब ने उसको भी रास्ता बता दिया और खतरे से आगाह कर दिया कि अगर पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे। अल्लाह का नाम लेकर दूसरा भाई भी जादू नगरी के लिए निकल पड़ा। 6 महीने की मुसाफत तय करके जादू नगरी में पहुंचा। उसने भी वहां वही कुछ देखा जो उसके भाई ने देखा था। उसे भी आवाजें सुनाई दी, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए। लेकिन वो दिल कड़ा किए बढ़ता ही रहा, यहाँ तक कि सोने का झरना उसे सामने नजर आने लगा। लेकिन फिर आवाजें इतनी बढ़ी कि बेइख्तियार उसने भी मुड़कर देख लिया और पत्थर का हो गया। 1 साल और गुजर गया, छोटा भाई भी नहीं आया। बहन बहुत परेशान थी। 2 साल में वो सयानी हो गई थी। उसे ये गम मारे डाल रहा था कि उसके दोनों भाई उसकी जिद की वजह से लापता हुए हैं। अब उसने उन्हें तलाश करने जाने का इरादा कर लिया। बड़ा ही बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने उसे बहुत रोका कि मुझे इस बुढ़ापे में छोड़कर मत जाओ, लेकिन लड़की ने कहा, अब्बा मुझे जाने दें, मैं वादा करती हूँ अपने दोनों भाइयों को वापस लेकर ही आऊँगी। उसे याद था कि उसके दोनों भाई शुमाल की सिमत गए थे, वो भी उस सिमत में निकल गई। 6 महीने में वो भी फकीर की कुटिया में पहुंची। फकीर उसे देखते ही पहचान गए। मालूम होता है तुम उन दोनों लड़कों की बहन हो जो तुम्हारी जिद पूरी करने गए थे और पत्थर के बन गए। अब अपनी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? लड़की ने कहा, बाबा अब जिंदगी का मकसद यही रह गया है कि अपनी गलती की सजा भुगतूं या अपने भाइयों को वापस लाऊं। आप मुझे दुआ दीजिए और मुझे उस नगरी का रास्ता बता दीजिए। फकीर साहब ने उसे रास्ता बताया और दुआ दी कि कामयाब हो जाए। सारे खतरों से आगाह करते हुए बताया कि अगर तुम उस झरने तक पहुंच जाओ तो सबसे पहले चिड़िया के पिंजरे पर हाथ डालना, सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी। आगे की सारी हिदायतें तुम्हें चिड़िया से मिल जाएंगी। लड़की ने फकीर साहब से थोड़ी सी रुई ली और उनकी दुआएं लेकर आगे चली। 6 माह चलने के बाद जब वो जादू नगरी पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि सजा सजाया खूबसूरत शहर है, लेकिन एक भी जानदार नहीं है। दुकानें खुली हैं, सामान रखा है,
لیکن دکاندار پتھر کے ہیں۔ مزدور مکان بنانے کو کھڑے ہیں، کھرپی ہاتھ میں ہے لیکن مزدور پتھر کے ہیں۔ چاروں طرف پتھر کے بت بکھرے پڑے ہیں۔ اس نے ایک نظر میں سب کچھ دیکھ لیا، پھر اپنے کانوں میں خوب سی روئی ٹھوسی اور اللہ کا نام لے کر شہر میں قدم رکھا۔ اندر گھستے ہی چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، پکڑو پکڑو، چور چور، جانے نہ پائے۔ لیکن وہ بڑھتی ہی رہی۔ آوازیں اور تیز ہوئیں تو اس نے خود حلق پھاڑ پھاڑ کر گانا شروع کر دیا۔ اپنی آواز کی تیزی میں دوسری آوازیں ہلکی پڑ گئیں۔ جب وہاں پہنچی جہاں سونے کے پانی کا جھرنا گر رہا تھا، ایک طرف ایک درخت سے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور درخت پر ایک پنجرا ٹنگا تھا جس میں ایک چڑیا بیٹھی تھی۔ تو آوازیں اتنی تیز ہو گئیں کہ اس کے لیے اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہو گیا، لیکن اس نے اللہ کو یاد کیا اور دوڑ کر چڑیا کے پنجرے پر ہاتھ ڈال دیا۔ چڑیا کا پنجرا پکڑنا تھا کہ ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ چڑیا نے کہا، خوش آمدید شہزادی، آج تم نے اس شہر پر سے جادو کے اثر کو توڑ دیا، تمہیں مبارک ہو۔ لڑکی نے کہا، میں شہزادی نہیں ہوں، میں تو بڑھئی کی بیٹی ہوں اور اپنے بھائیوں کو واپس لینے آئی ہوں۔ چڑیا نے کہا، تم شہزادی ہی ہو، وہ قصہ میں تمہیں بعد میں سناؤں گی، پہلے ان اللہ کے بندوں کو پتھر کی قید سے آزاد کرو۔ شہزادی نے پوچھا، یہ لوگ واپس انسان کیسے بنیں گے؟ چڑیا نے بتایا، وہ مٹکا رکھا ہے، اس میں اس جھرنے کا پانی بھرو اور سب پر چھڑکو، یہ سب دوبارہ انسان بن جائیں گے۔ شہزادی نے سب سے پہلے اپنے دونوں بھائیوں پر پانی چھڑکا، وہ زندہ ہو گئے۔ پھر ان تینوں نے مل کر سارے پتھر کے بتوں پر پانی چھڑکا، وہ سب کلمہ پڑھ پڑھ کر زندہ ہو گئے۔ چڑیا ان کے ساتھ تھی، اس کی ہدایت پر وہ شاہی محل میں آئے۔ یہاں دربار لگا تھا لیکن بادشاہ اور درباری سب پتھر کے تھے۔ شہزادوں نے ان پر پانی چھڑکا، وہ سب زندہ ہو اٹھے۔ بادشاہ نے ان تینوں کا شکریہ ادا کیا۔ چڑیا نے بتایا کہ ایک جادوگر نے کسی بات پر بادشاہ سے ناراض ہو کر سارے شہر کے لوگوں کو پتھر بنا دیا تھا۔ حلوائی پکوان تل رہے تھے، پکوان اصلی تھا لیکن حلوائی پتھر کا بن گیا تھا۔ ان تینوں نے واپس سارے شہر کو زندگی دی۔ بادشاہ ان کا احسان مند تھا کہ انہوں نے طلسم توڑ کر اس شہر کو دوبارہ زندگی دی۔ بادشاہ نے ان کی واپسی کے لیے عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے فراہم کیے۔ چڑیا کے کہنے پر شہزادی نے ایک ڈبے میں سونے کا پانی بھرا اور گاتے ہوئے درخت کی ایک ٹہنی توڑی اور وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آتے میں جو سفر انہوں نے سال بھر میں کیا تھا وہ گھوڑوں کی پشت پر اور چڑیا کے بتائے ہوئے دوسرے راستے سے 1 مہینے میں پورا ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے فقیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان سے دعائیں لے کر واپس گھر آ گئے۔ بڑائی بچوں کی جدائی میں بیمار پڑ گیا تھا، انہیں واپس صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گیا۔ چڑیا کی ہدایت پر شہزادی نے ایک تالاب کھدوا کر اس میں سونے کا پانی ڈالا، وہ پورا تالاب بھر گیا۔ اس کے کنارے درخت کی شاخ لگائی، وہ فوراً ہی پورا درخت بن گیا۔ پھر چڑیا کے بتانے پر انہوں نے اپنی جھونپڑی کے پیچھے کھدائی کروائی تو وہاں اشرفیوں سے بھرا ایک گھڑا دبا ہوا ملا۔ اس پیسے سے شہزادی نے تالاب کے چاروں طرف باغ لگوایا اور چڑیا کے کہنے پر بادشاہ سلامت کی دعوت کی۔ دعوت دینے وہ تینوں خود گئے۔ پہلے تو بادشاہ انہیں پہچانے نہیں کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو بچپن میں دیکھا تھا اور اب یہ نوجوان تھے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو یاد دلایا تو وہ پہچان گئے۔ شہزادی نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کو اپنی کٹیا پر بلانے کے لیے آئے ہیں، انکار مت کیجیے گا۔ بادشاہ اتنے سال بعد بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے، انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ جب بادشاہ بڑئی کے گھر پہنچے تو باغ کی تیاری دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس پر سونے کے پانی کا تالاب اور گاتا ہوا درخت تھا جس پر ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ چڑیا نے کہا، آداب بجا لاتی ہوں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ تو حیرت کے سمندر میں گوتے کھانے لگے۔ کسی چڑیا کو انسانوں کی طرح بولتے ہوئے انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ جب کھانا چن دیا گیا تو چڑیا نے کہا، ابھی کوئی کھانا نہیں کھائے گا، پہلے آپ اپنے محل کی چھت پر سے اس ملکہ کو بلائیے جسے آپ نے کوے ہانکنے کے لیے سالوں سے بٹھا رکھا ہے۔ بادشاہ نے تیوری چڑھا کر کہا، اسے کیوں؟ اس کے اندر تو کوئی شیطانی روح ہے جو کتے، بلی اور پتھر کو جنم دیتی ہے۔ چڑیا نے کہا، اس میں کوئی شیطانی روح نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کتے بلی کے بچوں اور پتھر کو جنم دیا ہے، اس نے انسان کے بچوں کو جنما تھا، پہلے آپ اسے بلائیے۔ ملکہ کو بلایا گیا، اس کا حال خراب تھا،
रंग रूप फीका पड़ गया था, रो रो के आंखें कमजोर हो गई थीं। बादशाह खुद अपनी अजीज मलका को नहीं पहचान पाए। चिड़िया के कहने पर उसे गुस्ल दिलवाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए। फिर चिड़िया ने कहा कि अब मलका की उन बहनों को बुलवाइए जो आपके बावर्ची और दर्जी की बीवियां हैं, और उस दाया को भी जो बच्चियों की पैदाइश के वक्त मौजूद थी। बादशाह के हुक्म से सबको उसी वक्त हाजिर किया गया। डर के मारे सबकी घिग्गी बंदी हुई थी। जब सब आ गए तो चिड़िया ने शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुनाई और बादशाह को बताया कि ये सब मलका की बहनों के हसद का नतीजा था। पहली मर्तबा आपके यहाँ लड़का हुआ था जिसकी जगह कुत्ते के बच्चे रख दिए गए। दूसरी दफा फिर लड़का हुआ जिसकी जगह बिल्ली के बच्चे रख दिए गए। मलका बेहोश थी, उसे कुछ पता नहीं चला, वो भी अपने आप को कसूरवार समझती रही। तीसरी बार लड़की हुई जिसकी जगह पत्थर रख दिया गया। उन दोनों ने तो तीनों बच्चों को जान से मारने का हुक्म दिया था, लेकिन दाया का ज़मीर जिंदा था। उसने उन्हें मारने के बजाय टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। तीनों बच्चे नदी के किनारे रहने वाले बढ़ई को मिले जिसने उनकी परवरिश की। चिड़िया ने बढ़ई से पूछा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? बढ़ई ने बादशाह सलामत से हाथ बांधकर अर्ज किया कि ये चिड़िया बिल्कुल सच कहती है, लेकिन मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं था कि वो आपके बच्चे हैं। अलबत्ता मैंने वो कपड़े संभाल कर रखे थे जिनमें ये बच्चे लिपटे हुए थे। बढ़ई जाकर वो दुपट्टे ले आया। मलका ने फौरन पहचान लिए, ये उसी के कपड़े थे। चिड़िया ने कहा, बादशाह सलामत, ये तीनों आपके बच्चे हैं, आपकी औलाद हैं। आपने अपनी बेगुनाह और वफादार मलका को 15 साल तक महल की छत पर बिठाकर जो उसके साथ जुल्म किया है, अब उसकी तलाफी कीजिए और इन बहनों को सज़ा दिलवाइए जिन्होंने हसद में अंधी होकर अपनी ही बहन का घर और जिंदगी दोनों बर्बाद कर दी। इन्होंने तो बच्चों को मरवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो दाया के दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया। बादशाह ख्वाब किसी हालत में सारी कहानी सुन रहे थे। अपने बच्चों को गले से लगाते हुए खुशी से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मलका से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मलका अपने शौहर और बच्चों को पाकर खुशी से फूली नहीं समाई। बादशाह ने मलका की बहनों को कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन मलका ने खुशामद करके अपनी अजमत का सबूत देते हुए उनकी जान बख्शवाई, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया। दाया को छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी खुदा तरसी की वजह से बादशाह को अपने तीनों बच्चे सलामत मिल गए। बढ़ई को महल में रहने के लिए मकान दिया गया। बच्चे हमेशा बाप की तरह उसकी इज्जत और एहतराम करते रहे। चिड़िया ने कहा, शहजादी, अब मुझे भी आज़ाद कर दो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप और भाई मिल गए और बादशाह सलामत को अपने बीवी बच्चे मिल गए। शहजादी ने चिड़िया का पिंजरा खोल दिया और चिड़िया उड़कर दूर देश चली गई। जैसे अल्लाह ने उनके दिन फेरे, ऐसे अल्लाह सबका भला करे। आमीन।